Now, in this video, we are talking about bit algorithms, important tactics, bit algorithm, important tactics. Let's look at some of the useful tactics of the bitwise operators, which can be helpful in solving a lot of problems really easy and quickly. How to set a bit in the number num? Our first tactic is how to set a bit in the number num. If we want to set a bit at nth position in number num, it can be done using OR operator. Let's consider if we want to set a bit at a nth position in a number, we have a number in that we want a bit in on the nth position. It can be done using OR operator. Okay, so here we are using OR operator for nth position in number. First we left shift 1 to n position. First we left shift 1 to n position. So in this tactic, first we left shift 1 to n position. Okay, left. Then second step is, then our second step is use OR operator to set bit at that position. Use OR operator to set bit at that position. OR operator is used because it will set the bit. OR operator is used because it will set the bit even if the bit is unset. Even the bit is unset. Previously in binary representation of number num. So how to set a bit in the nth position in number num? So first we left shift 1 to n position. Then we use OR operator to set bit at that position. OR operator is used because it will set the bit even if the bit is unset previously in binary representation of number. So why we use OR operator? OR operator हम इसलिए use करते हैं because it will set the bit even if the bit is unset previously in the binary representation of the number. जो bit है वो आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नंबर का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें प्रीवियसली अनसेट है. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि कोई भी बंदा पहले से किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड से अनसेट है, तो वहां पर हम एक और ऑपरेटर काम करता है, वहां पर उसकी सोच काम करती है कि वो यहाँ पर है या फिर वहां जाए. इस तरीके से यहाँ पर और ऑपरेटर वर्क करता है. ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से. हाउ टू अनसेट और क्लियर अ बिट. अब सेकंड टैक्टिक्स, अब सेकंड टैक्टिक्स इज दिस, हाउ टू अनसेट और क्लियर अ बिट एट nth position, bit at nth position in the number num.
our second tactics यह है how to unset or clear a bit at the nth position in the number num. In that number we have a number num. हमारे पास नंबर num है, उसमें हमारे पास जो nth पोजीशन पे जो बिट है उसको हमें हटाना है, बिल्कुल अनसेट करना है, क्लियर करना है. तो सपोज वी वांट टू अनसेट अ बिट एट nth पोजीशन इन नंबर नम. नंबर नम में nth पोजीशन पे हम एक बिट को अनसेट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, देन वी हैव टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर. सो इफ यू वांट टू सेट ए बिट, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक बिट को सेट करना चाहते हो तो यू आर यूजिंग और ऑपरेटर, और उसी नंबर में यदि आप उसको अनसेट करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो यू आर यूजिंग एंड ऑपरेटर. ओके, so for this technique we are using AND operator. It is very simple thing. And what steps we follow? So first we left shift 1 to n position here also. पहले भी हमने क्या किया था, 1 को लेफ्ट शिफ्ट में 1 को n पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट में हमने उसको इस तरीके से शिफ्ट किया था. तो वी यूज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर टू अनसेट द शिफ्ट. तो फर्स्ट we left shift 1 to n positions via 1 less than n. Then we use bitwise not operator to unset the shift. Then we use bitwise not operator to unset this shifted 1. तो हम जब क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 को n पोजीशन, ठीक है, और फिर हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर यहाँ पर यूज करेंगे. Now after clearing this left shift 1 that is making it to 0, we will end with the number num that will unset bit at the nth position. Okay, we will end with the number num means जो नंबर हमारे पास नम है ना, उसमें हमको क्या करना है, एंड ऑपरेटर को जो है यूज करना है, जो आपका अनसेट कर देगा nth पोजीशन के बिट को. ठीक है, इस तरीके से आप अनसेट करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करोगे, और सेट करने के लिए बिट को एक नंबर में nth पोजीशन पे आप किसका यूज करोगे, और ऑपरेटर का यूज करोगे. ठीक है, और अनसेट करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे. थर्ड टेक्निक में हम बात करते हैं टॉगलिंग अ बिट एट nth पोजीशन. टॉगलिंग अ बिट, टॉगल अ बिट, टॉगलिंग अ बिट एट nth position. Toggling means to turn bit on if it is was off and to turn off if it is was on. It is very simple. अगर आपकी बिट ऑन है तो उसको ऑफ कर देना है, और अगर आपकी बिट ऑफ है तो उसको ऑन कर देना है. जैसे आप अपने रूम में जाते हो, अगर बत्ती ऑन है, लाइट ऑन है, तो उसको ऑफ कर देते हैं जब भी आपको बाहर जाना होता है, और अगर लाइट ऑफ है तो उसको क्या कर देते हो, आप ऑन कर देते हो जब आपको रूम में कुछ काम करना होता है. दैट इज लाइक दैट हियर. यहाँ पे भी यही चीज होगी कि हम अगर बिट ऑन होगी 1 होगी तो वो ऑफ होगी, और अगर आपकी वो ऑफ है 0 है तो उसको 1 करना पड़ेगा. वी विल बी यूजिंग जोर ऑपरेटर हियर विच इज दिस सिंबल. सो हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं बिटवाइज, ये हमको पता होना चाहिए, और वो आपका जोर है. ठीक है, वी विल बी यूजिंग जोर ऑपरेटर हियर. द रीजन बिहाइंड जोर ऑपरेटर इज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. अब जोर ऑपरेटर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि ऑन होगा तो ऑफ कर देगा और ऑफ होगा तो ऑन कर देगा. ऐसी प्रॉपर्टी है, इसी वजह से उसको यूज करते हैं. अब इसको देख लेते हैं हम कि भाई 1 जोर 1 किया तो 0, क्योंकि 1 जोर 1 मतलब वो आपका ऑन जोर ऑन है, तो वो आपका 0 है. ठीक है, और 0 जोर 0 की बात करेंगे तो वो आपका 0 आएगा, और दूसरा आपका 1 जोर 0 की बात करोगे तो आपका 1 आएगा, एंड 0 जोर 1 की बात करोगे तो आपका 1 है. सिंपल है कि आप
कोई एक एटलीस्ट वन जो है वो आपका ऑफ हुआ तो आपका क्या आना है, एटलीस्ट वन ऑफ हुआ तो आपका ऑन आना है उसका आंसर। और अगर दोनों ही आपके ऑन हुए और दोनों ही आपके ऑफ हुए तो इस केस में क्या आना है, ऑफ आना है। ठीक है, तो ये जॉर की प्रॉपर्टीज है। जॉर की प्रॉपर्टीज यही है कि आपका वन ऑन वन, वन जॉर वन, जीरो दैट इज ऑफ, जीरो ऑफ जीरो दैट इज जीरो। तो जीरो जीरो मतलब ऑफ 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 दैट इज ऑल्सो ऑफ, और वन ऑफ जीरो वन, और जीरो ऑफ वन वन। So if two bits are different then JOR operator return a set of bit and it return an unset bit। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है कि if two bits are different then JOR आपका क्या काम करेगा, जब दोनों बिट डिफरेंट होंगी तो JOR ऑपरेटर आपका क्या काम करेगा, JOR ऑपरेटर आपका रिटर्न रिटर्न्स ए सेट बिट वन। तो दोनों ही ऑपरेटर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट मतलब जीरो और वन होंगे तो आपको वन लौटाएगा, वो आपको वन वापस करेगा। एल इट रिटर्न अनसेट बिट जीरो। और अगर दोनों ही सेम हुए, एल्स का मतलब यही तो हुआ, इट रिटर्न्स आ इट रिटर्न्स आ एन अनसेट बिट जीरो। नेक्स्ट टैक्टिक में हम बात करते हैं अपनी फोर्थ की टैक्टिक की, चेकिंग इफ बिट एट nth पोजीशन इज सेट और अनसेट। हमने सीख लिया कि हम कैसे सेट करेंगे, और ऑपरेटर का यूज करके, अनसेट और क्लियर कैसे करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करके है। और अब हमको चेक करना है कि बिट जो है वो nth पोजीशन पर सेट है या अनसेट है। ठीक है, मतलब चेकिंग इफ बिट एट nth पोजीशन इज सेट और अनसेट, इज सेट और अनसेट। तो इट इज क्वाइट इजीली डूएबल यूजिंग एंड ऑपरेटर। इसको हम एंड ऑपरेटर का यूज करके आसानी से चेक कर सकते हैं। लेफ्ट शिफ्ट वन टू गिवन पोजीशन एंड देन एंड। If the result of the AND operator is 1, then the bit at nth position is set, otherwise it is unset. It's very simple। कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर AND ऑपरेटर का यूज करके चेक कर सकते हैं कि उसकी nth पोजीशन पर वो सेट है या अनसेट है। ठीक है, अब देखो अब करेंगे क्या, इजीली इसको AND ऑपरेटर का यूज करके हम कर सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट वन टू गिवन पोजीशन, वन को जो है गिवन पोजीशन पे लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया और फिर आपका एंड यूज कर लेना। ठीक है, वन को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया गिवन पोजीशन पर, देन आपका एंड यूज कर लेना है आपको। इफ द रिजल्ट ऑफ द एंड ऑपरेटर इज वन, और अगर एंड ऑपरेटर का रिजल्ट वन हुआ, एंड ऑपरेटर का रिजल्ट अगर वन हुआ तो बिट nth पोजीशन पर सेट है, अदरवाइज इट इज अनसेट। ठीक है, मतलब ट्रू रिजल्ट हुआ तो सेट है, वन मतलब ट्रू ही तो होता है, और अगर अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट हुआ तो वन सेट है। तो यही बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हम किस तरीके से चेक करेंगे nth पोजीशन पर बिट आपकी सेट है अनसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट वन टू गिवन पोजीशन एंड देन एंड, फिर आपका एंड ऑपरेटर का यूज होना लाजमी है यहाँ पर। ठीक है, अगर रिजल्ट ऑफ द एंड ऑपरेटर इज वन, और इफ द रिजल्ट, चलो लिख के ही बता देता हूं मैं आपको, इफ द रिजल्ट ऑफ द एंड ऑपरेटर, इससे और अच्छे समझ जाओगे आप, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेशन जो हमने किया है, अगर वो आपका वन होगा तो द बिट एट nth पोजीशन इज सेट, nth पोजीशन पे जो बिट होगी वो सेट हो जाएगी, और अदरवाइज इट इज अनसेट। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है, इससे आप पता लगा सकते हो। अगर अगर आपको फिफ्थ टेक्निक की बात करनी है तो फिफ्थ टेक्निक आपकी ये है, आपकी x इक्वल टू एक्स दैट इज ग्रेटर देन वन। अब लॉजिक क्या है यहाँ पर, व्हेन वी डू अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, every bit is shifted to right and blank position is substituted with sign bit of number 0 in case of positive and 1 in case of negative numbers, since every bit is a power of 2। अब आपको पता है कि हर एक बिट जो है पावर ऑफ 2 है,
with each shift we are reducing the value of each bit by a factor of 2 which is equivalent to division of x by 2. लॉजिक यहाँ पर ये सिंपल है, यहाँ पर ये सिंपल लॉजिक है कि व्हेन वी डू अर्थमेटिक राइट शिफ्ट एवरी बिट इज शिफ्टेड टू राइट. अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे तो हर एक शिफ्ट जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जो ब्लैंक पोजीशन है सब्स्टिट्यूट विद साइन बिट ऑफ नंबर 0, और ब्लैंक पोजीशन में सब में 0 भर देना है इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड 1 इन केस ऑफ नेगेटिव. नेगेटिव में 1 होगा आपका और पॉजिटिव में 0 होगा. अब देखो एवरी बिट इज ए पावर ऑफ 2. हर एक शिफ्ट आर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इच बिट बाय पावर फैक्टर ऑफ 2 कम कर देगी, जो आपकी विच इज इक्वलेंट टू डिवीजन ऑफ x बाई 2. ठीक है, मतलब ये हो गया आपका कि x आपका अगर 18 है, 0 0 0 1 0 0 1 0 ये है, और ये आपका बाइनरी नंबर है 18 का. तो x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 9. तो हमने उसको राइट शिफ्ट कर दिया, 9 आ गया, तो 0 0 0 0 1 0 0 1. ठीक है. दूसरा लॉजिक हम देख लेते हैं कि 6 वाला जो भी टैक्टिक्स है कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाइड करें बाई 2. इफ मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कहने का मतलब यह है कि इफ x इज इक्वल टू एक्स लेस देन 1, x इक्वल टू एक्स है जो कि आपका 1 से कम है. तो when we do arithmetic left shift here multiply by 2, every bit is shifted to left and blank position is substituted with 0. Since every bit is a power of 2, with each shift we are increasing the value of each bit by a factor of 2. तो यहाँ पर हम बढ़ाते हैं भाई, यहाँ पर वैल्यू बढ़ाते हैं हम. ठीक है, वहां पर क्या कर रहे थे, इससे पहले वाली जो टेक्निक थी उसमें हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, घटा रहे थे. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू को बढ़ाएंगे बाई फैक्टर बाई 2. ठीक है, विच इज इक्वलेंट टू डिवीजन ऑफ x बाई 2 होगी. ठीक है, डिवीजन ऑफ x बाई 2 के इक्वलेंट हो जाएगी वो आपकी. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर यू कैन सी हेयर x इक्वल टू क्या है, 18 है, 0 0 0 1 0 0 1 0 ये है आपने. ठीक है, और x आपका क्या है, 1 से छोटा है, दैट इज 36. तो 0 0 1 0 0 1 0 0 ये आपका क्या है, 36 हो जाएगा, जो कि 2 से मल्टीप्लाई किया है 18 को, यहाँ से 2 से डिवाइड किया था 9 आया था, 2 से मल्टीप्लाई किया है 18 को, 36 हो गया है, लेफ्ट शिफ्ट किया है. तो जो जो भी हमारा बाइनरी नंबर था वहां पर क्या करना है हमें, 0 0 और 1 जो होगा उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देना है. ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 1, उसके बाद 1 की जगह 0 कर दिया, देन ये 0 हो जाएगा, फिर 1 0 की जगह 1 कर दिया और 1 की जगह 0 कर दिया. इस तरीके से हमारा शिफ्ट हो जाएगा. सो ये आपकी टेक्निक्स है किसकी, मल्टीप्लाई बाय 2 के केस में. नेक्स्ट टेक्टिक्स की बात करेंगे, फाइंड लॉग बेस 2 ऑफ ए 32 बिट इंटीजर. अब देखो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दिया मैं कि एक 32 बिट का इंटीजर आपके पास है. ठीक है, 32 बिट का इंटीजर है और उसका लॉग ऑफ बेस 2 आपको फाइंड करना है. 32 बिट का इंटीजर है, उसका लॉग ऑफ बेस 2 फाइंड करना है. तो वेरी सिंपल होगा लॉग ऑफ बेस 2 फाइंड करना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि इंट लॉग ऑफ बेस 2 इंट एक्स. जो हमने इंट एक्स डाला है यहाँ पर, इंटीजर टाइप है 32 इंटीजर का एक्स डाला है, तो इंट आपका क्या हो जाएगा, इंट रेस रिजल्ट इक्वल टू 0 हम पहले लेके चल रहे हैं, वाइल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रिजल्ट आपका यहाँ पर प्लस प्लस कर देना है और फिर रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा. ठीक है, 32 बिट का इंटीजर है. ठीक है, और log 2 है जिसका इंट एक्स है, log 2 इंट एक्स. रिजल्ट आपके पास 0 है, रिजल्ट ऑलरेडी 0 ले रखा है. जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, रिजल्ट प्लस प्लस होना है और रिटर्न आपका रिजल्ट ही करा देना है बाद में. तो लॉजिक यहाँ पे ये है कि वी राइट शिफ्ट x रिपीटेडली अंटिल इट बिकम्स 0. मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का 1 का मतलब यह है कि राइट शिफ्ट कराएंगे उसको. शिफ्ट ये तो ऑपरेटर है ये आपका, राइट शिफ्ट कराएंगे, कब तक कराएंगे, जब तक वो 0 नहीं हो जाता. मीनवाइल वी कीप काउंट ऑन द शिफ्ट ऑपरेशन. शिफ्ट ऑपरेशन पे हम हमेशा क्या करेंगे, काउंट लगाएंगे. द काउंट वैल्यू इज द log 2x.
और काउंट वैल्यू जो होगी वो आपकी log 2x हो जाएगी। तो इस तरीके से हम log ऑफ बेस 2 फाइंड कर सकते हैं। ये एक लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट आप समझ सकते हो आपकी एक टैक्टिक्स को, और जो कि आपकी क्या है, इस तरीके से है, फ्लिपिंग द बिट्स ऑफ ए नंबर। फ्लिपिंग द बिट्स ऑफ ए नंबर। फ्लिपिंग द बिट्स ऑफ ए नंबर यानी एक नंबर जो आपके पास दे रखा है उसकी जो बिट्स दे रखी हैं उनको फ्लिप करना है। तो इट कैन बी डन बाय अ सिंपल वे, जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम द वैल्यू ऑब्टेन व्हेन ऑल द बिट्स आर इक्वल टू 1। अब इसको हम एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सिंपल तरीका यही होगा कि सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम द वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, व्हेन ऑल द बिट्स आर इक्वल टू 1। चलो एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एग्जांपल के जरिए देख लो। मतलब हमारे पास एक नंबर है, गिवन नंबर जिसे बोलेंगे, ठीक है, और वैल्यू वैल्यू हमको दे रखी है ए नंबर विद ऑल बिट्स सेट इन गिवन फ्लिप्ड नंबर। ए वैल्यू वैल्यू क्या है, एक नंबर है, वैल्यू आपका एक नंबर है जो आपकी विद ऑल बिट्स सेट है इन बिट सेट है इन गिवन नंबर। सो फ्लिप्ड नंबर क्या है, फ्लिप्ड नंबर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कि फ्लिप्ड नंबर जो है वो आपका, हम फ्लिप कर रहे होंगे वैल्यू माइनस नंबर। हमारे पास एक नंबर पहले से गिवन है, ठीक है, एक है वैल्यू है। वैल्यू क्या है, वैल्यू एक नंबर है, जो नंबर हमें गिवन है ना उसमें सारी बिट्स को सेट कर दो तो वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो आप वैल्यू में से नंबर को माइनस कर देना तो फ्लिप नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे नंबर आपके पास क्या है 23, अब इसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी 10111, ठीक है। आफ्टर फ्लिपिंग डिजिट्स नंबर विल बी, अब डिजिट्स को फ्लिप करने के बाद नंबर क्या बन जाएगा 01000, ठीक है। तो वैल्यू आपकी क्या है, वैल्यू आपकी हो जाएगी 31, ठीक है। वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आफ्टर फ्लिपिंग डिजिट नंबर विल बी 01000, और वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी 11111, ठीक है, जो कि 31 होगी एग्जैक्टली। सो ये आपकी फ्लिपिंग ऑफ द बिट ऑफ ए डिजिट, डिजिट की जो भी बिट होती है उसको फ्लिप कर सकते हैं इस तरीके से। स्वैपिंग टू नंबर्स, लास्ट टैक्टिक्स हमारी यहाँ पे यूज हो रही है, स्वैपिंग टू नंबर। अब दो नंबर को हमें क्या करना है, स्वैप करना है, स्वैपिंग टू नंबर। अब दोनों नंबर को स्वैप कैसे कर सकते हैं ये हमें यहाँ पर सोचना है। तो वी कैन इजीली स्वैप टू नंबर्स से ए एंड बी बाय यूजिंग द जॉर ऑपरेटर। तो बिटवाइज मैजिक यूज करने के लिए, बिटवाइज मैजिक सीखने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एक नंबर जो ए होता है एंड दूसरा नंबर जो आपका बी होता है उसमें हम जॉर ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जॉर ऑपरेटर जो होता है वो आपका, जॉर ऑपरेटर जो होता है वो आपका ब्लो ऑपरेशन लगाते हैं हम। जैसे ए जॉर इक्वल टू बी है एंड बी जॉर इक्वल टू ए है और ए जॉर इक्वल टू बी है। मतलब जॉर ऑपरेटर का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर को फ्लिप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है यार, स्वैप स्वैप कर सकते हैं। जैसे ए को आपने क्या लिखा, ए जॉर बी कर दिया, ए के अंदर ए जॉर बी स्टोर हो गया। अगर देखो जॉर का मतलब ये हो गया कि अगर 1 1 हुआ तो ए के अंदर 0 आ जाएगा, अगर 0 0 हुआ ए और बी दोनों तो ए के अंदर आपका 1 आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एक 0 हुआ कोई एक 1 हुआ तो आपका उसका क्या आना है, 1 ही आना है, ठीक है। दोनों केस में 0 और उस केस में 1 आना है। ये जॉर का फंक्शन होता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। और समझ लोगे तो अच्छी बात है, कुछ जिंदगी में कर जाओगे, और नहीं समझोगे तो भाई तुमको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, क्यों समझोगे फिर तुम। तो वही सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा रहा हूँ। अब बी के अंदर आपको क्या करना है, बी के अंदर आपको करना है बी जॉर ए, ठीक है। बी के अंदर बी जॉर ए करना है और ए के अंदर आपको क्या करना है, ए जॉर बी। तो ए बी ए जो है हमने एक्चुअली सिर्फ मतलब स्वैप कर दिए बिल्कुल।
तो ये टेक्निक आपकी जो है काम करेगी स्वैपिंग ऑफ नंबर में यूजिंग जॉर ऑपरेटर। बिट वाइज हम बात कर रहे हैं, इसलिए बिट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी हैं हमने। तो बेसिकली हमारा टारगेट यही है कि आपको फ्री एजुकेशन देना, अच्छे से आपको समझाना, ठीक है, और आपको हमारे कोर्स से जोड़ना। हमारा कोर्स आपका इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कोर्स से आप जुड़ोगे, हमारी वेबसाइट से जुड़ोगे, तो काफ़ी अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। 100% गारंटी है हमारे प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको प्लेसमेंट मिलेगा, आपके कैलिबर के ऊपर है। 40 लाख तक प्लेसमेंट आप ले सकते हो। हम आपको प्लेसमेंट के लिए सारी प्रिपरेशन कराएंगे इस कोर्स के अंदर। पैसे कुछ भी नहीं देने आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कोर्स है, ठीक है। वेबसाइट पे जाओ, एक्सप्लोर करो, और फिर हमको बताना कि आपको कुछ डाउट है, तो फिर हमसे आप बात करना, ठीक है। चलिए चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही था। प्यार बांटते रहिए, और हम इसी तरीके